Hello and welcome to this solo learning journey. Number of subsets will be 2 to the power 8. It was there in question paper, means 19 of J or 16 or sorry, I'm mistaken. Some of the points regarding subset. सारे 2 to the power n सबसेट को अगर हम एक सेट के तौर पे यूज करके एक सेट बनाएं, देन उसको हम पावर सेट इन फ्रंट ऑफ यू विल जस्ट नीड टू कोप अप दिस यूनिवर्सल सेट एंड देन वेन डायग्राम देन ऑपरेट सारे एलिमेंट्स जितने तुम सोच सकते हो तुम्हारा उस ऑपरेशंस 1 सबसे पहले यूनियन मतलब कंबाइंड एलिमेंट्स. यूनियन बी इज आल्सो अ सेट एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन इंटरसेक्शन के केस में ओनली द कॉमन एलिमेंट. नाउ डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस a minus b union of b minus a. So complement of our set क्या है? If you can't buy time for yourself, then it's completely wasted. Okay? Yeah. Thanks for watching this and yes. Bye. Have a good time. Hello and welcome to this solo learning journey. Okay, so yesterday in the last class, we had done up to this, right? The number of subset we were doing. Okay, one theory portion which was left, that is the number of total subsets of a set is equal to, okay, the total number of subsets is equal to. यहाँ पे एलिमेंट कितना था ए में? उस एग्जाम्पल में ए में 3 एलिमेंट था 1 2 and 3 and we got 2 to the power 3 is equal to the total number of subsets out there. Okay, in the same way, when the number of elements in a set is n, the total number of subsets will be 2 to the power n, or you can say just 2 to the power cardinality of that set. Okay, n is what actually? N is the order or the cardinality of that set. Okay, so total number of subsets of a set A, अगर सेट A है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है? 2 to the power n of A. 2 to the power n of A, what is this? This is the cardinality. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो 2 to the power n होगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मान लेते हैं कि 6 है तो total number of subsets will be 2 to the power 6. Okay, now let's discuss about an example related to this number of subsets. Okay, there's a given set A is equal to 1 2 3 4 5. Okay, how many elements are there? 5 elements. Okay, so first one, the total number of subsets out there will be, total number of subsets कितना होगा? 2 to the power n of A. 2 to the power 5 is equal to 32, right? Yes. क्यों? क्योंकि 1 के पास 2 ऑप्शन है, 2 के पास भी 2 ऑप्शन है, 3 के पास भी 2 ऑप्शन है, 4 के पास भी 2 ऑप्शन है, 5 के पास भी 2 ऑप्शन है. They can form or they can't. Okay, now 2, the subsets, the total number of subsets containing element 1 and 5. इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा सबसेट्स तुम्हें लिखना है, ऐसा नंबर ऑफ सबसेट्स तुम्हें लिखना है जिसमें 1 and 5 होना ही चाहिए. ओके, 1 and 5 के पास तो फिर कितना ऑप्शंस रहा? उन दोनों को आना ही है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस. ओके, सो फॉर दिस केस 1 के पास कितना ऑप्शंस है? यहीं पे एक ही ऑप्शन है, उसको आना ही है. नहीं आ सकता ऐसा कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं. ओके, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है. दूसरा 2 के पास 2 ऑप्शन है. तीसरा 3 के पास भी 2 ऑप्शन है. 4 के पास भी 2 ऑप्शन है. 5 के पास
एक ऑप्शन है। वाई 5 के पास एक ऑप्शन है, क्यों? बिकॉज यू शुड ऑलवेज कीप 5 इन दैट सबसेट्स। ओके, सो अभी कितना हो रहा है यहीं पे कैलकुलेट करो तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 8. So total number of subsets containing elements 1 and 5 is, wait, see another one. Now total number of subsets containing element 2 but not 3. इस बार क्या है, इस बार you have to always choose 2, you have to always take 2 but not 3. 3 को तुम ले ही नहीं सकते, तो 2 के पास एक ही ऑप्शन है, उसको आना ही है, राइट? 2 के पास, सो 1 2 3 4 5, 2 के पास कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, उसको सबसेट फॉर्म करना ही है। ओके, 3 के पास, 3 को हमें नहीं लेना है, वो सबसेट फॉर्म नहीं कर सकता। ओके, बाकी तीनों के पास कितना ऑप्शन है? इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 1 1 2 2, in this case also 8. Okay, I hope it's clear. Now D, number of subsets containing element 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, containing element 4. 4 के पास, अब देखो यहीं पे 4 को लेना ही है आपको इस सेट में। सो 1 के पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, इधर इट कैन और इट कांट। 2 के पास कितना अपॉर्चुनिटी है? 2 है, हाँ या ना, राइट? यस। 3 के पास कितना अपॉर्चुनिटी है? 2 है, पर 4 के पास कितना अपॉर्चुनिटी है? उसको आना ही है, इट कैनॉट रिफ्यूज। ओके, सो 4 के पास एक ही ऑप्शन है। 5 के पास कितना ऑप्शन है? 5 के पास भी 2 ऑप्शन है, सो 1 2 3 4 5, सबके पास 2 2 ऑप्शन है, एक 4 के पास एक ही ऑप्शन है। ओके, 4 के पास एक ऑप्शन क्यों है? क्योंकि 4 को आना ही है, यहाँ पे बोला हुआ है। द नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एलिमेंट 4, so 2 cross 2 cross 2 cross 1 cross 2, how much is 2 to the power 4 is equal to 16. I hope up to this is clear. Okay, so yeah, this type of question you might come across. Okay, okay, so this is question number, I guess, question number 6. Question number 6, and it was there in question paper means 19 of JEE Mains. Okay, so let S is equal to 1 2 3 dot 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 up to 100. This is the set given there. Okay, and the number of empty subsets, okay, sorry, it will be number of non-empty subsets. Number of empty subset तो एक ही होता है ना, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स 1 ही होता है, दैट इज 5 सेट। ओके, वॉइड सेट और नल सेट। ओके, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सबसेट्स ए ऑफ एस, एस का वो सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स तुम्हें फाइंड करना है ओके, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। मतलब वैसे सेट का नंबर बताना है, टोटल कितना नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स हमें मिलेगा, जिसका अगर एलिमेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट जो है वो इवन आए। लाइक फॉर एग्जांपल एक ऐसा ए क्या मिलेगा, 1 3 5 7 2, इन सारे एलिमेंट्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो
2 है, then you will find even, right? So this is one of a kind example. Okay, now तो एक और बताओ, 3, 8. This will also, the set comes under this subset A. Okay, so 3 into 8, 24, it's even. ऐसे करके बहुत सारे सबसेट तुम्हें मिलेगा। क्वेश्चन है कि वैसे कितने सबसेट्स तुम फॉर्म कर सकते हो इस एलिमेंट से। ओके, नाउ हियर वन थिंग you should keep in mind that a multiplication will be even if there exists at least one even element, one even number. Okay, like for example, अगर 1, 3, 7, 11, 13 इन सारी चीजों का मल्टीप्लीकेशन, इस सारे प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड आएंगे। इसके साथ 1, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आ जाएगा, राइट? यस, इन द सेम वे इवन नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे वर्ड के साथ तब भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। इट मीन्स एटलीस्ट एक इवन अगर उस सेट में हम लोग घुसा सके, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट एक अगर घुसा सके, देन इट विल कम्स अंडर दिस कंडीशन। ओके, बट अगर कोई सेट ऐसा मिले जिसमें एक भी इवन नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा सेट मान लो जिसमें एक भी इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अगर सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे यू विल फाइंड ऑड। तो ऐसा सेट को नहीं लेना है। ओके, ऐसे सेट को हमें नहीं लेना है। इन दिस केस देयर शुड बी एटलीस्ट वन इवन नंबर। ओके, आई होप इट्स क्लियर कि एक इवन नंबर एटलीस्ट क्यों जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन there should be at least one even number in the subsets. Okay, right? एटलीस्ट एक इवन नंबर होनी चाहिए। जब एक भी नहीं होगा देन इट विल नॉट कम अंडर दिस। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर और इवन नंबर इसमें कितना है दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितना है, 7, सॉरी 5, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके करके 99। टोटल नंबर कितना है, टोटल 50 नंबर्स है। नाउ एक और चीज, 2, 4, 6 ऐसे करते करते टोटल 100 तक कितने नंबर्स हैं, here also 50, right? yes, here also 50। now इसके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये या तो सबसेट फॉर्म कर सकता है या तो नहीं कर सकता, राइट? 3 के पास भी 2 ही ऑप्शन है, 5 के पास भी 2 ही ऑप्शन है, 7 के पास भी 2 ऑप्शन है, 99 के पास भी 2 ही ऑप्शन है। इज इट क्लियर? हाँ, 2 ही ऑप्शन है। सो इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ के, ये 50 एलिमेंट्स को जोड़ के हमें टोटल कितना नंबर ऑफ सबसेट्स हम बना पाएंगे, 2 to the power 50। क्लियर है? 50 नंबर्स को हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन में डाल के कितना नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power 50, 2 to the power n of that set, 2 to the power n of मतलब कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, व्हाट नंबर्स कितना है इसमें, 50 है, तो 2 to the power 50। इन दिस केस इसके पास कितना ऑप्शंस है, 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी सेम वे में। ओके, so total number of subsets in this case from
even number. Okay, from even number total number of subsets also 2 to the power 50, right? Total number of subsets 2 to the power 50. Is it clear? Now एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक केस ऐसा तो मिलेगा ना इसमें जिसमें दो भी कहेगा कि आई विल नॉट फॉर्म सबसेट, राइट? 4 भी कहेगा आई विल नॉट फॉर्म सबसेट, 6 भी कहेगा मैं भी नहीं। ऐसे करते करते जितना भी इवन नंबर है, अगर सारे इवन नंबर ना आए उस सेट में, सबसेट में, ओके, देन क्या प्रोडक्ट ऑफ दैट सबसेट विल बी इवन? नहीं होगा। तब क्या होगा? जब सारे इवन नंबर नहीं आएंगे तब क्या होगा? तो सारे ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो फिर राइट, सारे ऑड नंबर ही होगा। सारे ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। देन वो वाला जो सेट है वो इसमें नहीं रहना चाहिए। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें इस नंबर को इवन नंबर से मिलाकर कितना होगा? 2 to the power 50। लेकिन इंक्लूडिंग क्या है? इंक्लूडिंग वो वन फैक्टर जिसमें सारे लोग ये कहेंगे कि हम नहीं चलेंगे, वो वाला पॉइंट भी उसके अंदर आएगा। ओके, सो दैट्स वाई वो 1 वाला कंडीशन -1 करना पड़ेगा। अब -1 जब किया, इसमें से अब कोई से भी एक सबसेट चुन लो। 2 to the power 50 इसके अंदर वो वाला सेट भी है जिसमें एक भी इवन नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग कैसे चूज करते हैं? 50 टोटल नंबर, उसमें से एक भी हम लोग चूज नहीं किए, तो टोटल 50 इवन नंबर, उसमें से एक भी चूज नहीं किया। ओके, तो क्या होगा? 50C 0 इज इक्वल टू 1, उसमें एक भी इवन नंबर नहीं है। तो अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो भी इसमें से 2 to the power 50 कॉम्बिनेशन बनेगा उनमें से किसी एक लेंगे, और मतलब किसी के साथ ये वाला जो कंडीशन है वो अगर आएगा, एक भी इवन नंबर नहीं है, देन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, we will get product what? Not even. So that's why this -1 is important. Okay, I hope you got it. Now इस कॉम्बिनेशंस में किसी एक एलिमेंट इसमें डाल दो, किसी भी एक में, तो वो ये जैसा कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें से हम लोग ये लिए और साथ में इसमें से एक दो उसके साथ जोड़ दिया, तो मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट इवन मिला। ओके, यस। सो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा? दोनों मल्टीप्लिकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स in this case here will be 2 to the power 50 minus, sorry, not minus, 50 into 2 to the power 50 minus 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो, 2 to the power 100 minus 2 to the power 50। 2 to the power 100 का क्या मतलब है? 2 to the power 100 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट एस। ओके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, क्योंकि एस में कितने एलिमेंट्स हैं? 100 है, तो 2 to the power कार्डिनलिटी वही तो लिखा हुआ है, माइनस क्या लिखा है? नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम और यूजिंग ओनली इवन एलिमेंट्स। इसमें भी क्या लिखा है? टोटल, TSS लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम और यूजिंग ओनली 50 इवन नंबर्स। और इसमें क्या है? इंक्लूडिंग 5 और वाइड सेट। ओके, 2 to the power 50 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, उसके अंदर वाइड साइड भी है,
So that's why. Okay, I hope this question is pretty good and you understand it well. Okay, now another question which will be homework or yeah. Question number 7. हाँ कहाँ गया हाँ. So question number 7. Question number 7 ये मेंस 20 में आया था. Okay. A cent aim has cent A has m elements and set B has n elements. Okay. Set A has m elements and set B has n elements. If total number of subsets of A, if total number of subsets of A is 112 more than B, then find m dot n. ओके इसको फाइंड करना है. A set A has m elements and set B has n elements if total number of subsets of A is greater than total number of subsets of B. And how much is greater? 112. Okay, so solution देख लेते हैं. In this case, solution what will be? Total number of subsets in the case of A. ये में कितना एलिमेंट है? So 2 to the power n of A minus 2 to the power n of B is equal to 112. क्योंकि A में 112 एलिमेंट्स ज्यादा है. A कहाँ है ना? Yes. So yeah, 2 to the power n of m ये क्या दिया हुआ है? m minus 2 to the power n is equal to 112. और दो का ही पावर का डिफरेंस 112. इसमें 2-3 केसेस में कर सकते हैं. जैसे 1 2 होता है, 2 4 3 8 4 is equal to 16 5 32. कैलकुलेशन आपके हिसाब से करना है. 64 7 करेंगे 128. 128 minus 16 is equal to 112. Okay, so 2 to the power 7 minus 2 to the power 4 is equal to 112. So m के वैल्यू 7 है, n के वैल्यू 4 है. From this comparison करके m is equal to 7, n is equal to 4. m cross n is equal to 20. Okay, I hope you understand it. Another method, 2 to the power n common ले लो इसमें से. Okay, so 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 112. Now 2 to the power something minus 1. 2 के पावर में अगर 0 आता है, यहाँ पे 0 नहीं होगा. 0 होगा तो ये वाला कंडीशन वैलिड नहीं होगा. ओके, दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता. सेम होगा तो फिर ये 112 एक साइड में नहीं होगा कभी. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो अगर m माइनस n का कोई भी वैल्यू 5 हो, 7 हो, 10 हो, इवन हो या ऑड, इट डजंट मैटर. ओके, इट डजंट मैटर. It will always 2 to the power that even or odd, it will always provide even. Minus 1 is equal to odd, right?
So this whole expression will be odd, but this 2 to the power m minus 1 it will be even. So ये odd है, then it should be even, right? Then only even and odd का multiplication even होगा, वरना अगर a भी odd होता है तो इसको भी odd होना पड़ेगा, but it's even. Now 2 to the power n into 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 16 into 7. 16 into 7 हो रहा है, I hope so. 42 7, yes, 16 into 7. Okay, now equate करो both sides. So 2 to the power n is equal to 2 to the power 4 16, और क्योंकि ये word वाला है, word 2 to the power n और 16 word, sorry I'm mistaken, 2 to the power n is even and 16 is even. So इन दोनों को equate करो, ये word है इसके साथ equate करो. 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 7. So n is equal to 4 from here. n का वैल्यू पुट करें यहाँ पे, 2 to the power m minus 4 is equal to 2 cube. Okay, so m minus 4 is equal to 3, m is equal to 7. कभी कभी ऐसे अगर नहीं होता है, क्योंकि लार्ज नंबर होगा तो वैसे नहीं होगा शायद, तो इन दैट केस यू शुड यूज दिस टू. ओके, और you can also find from elimination और option test के through भी कर सकते हो. I hope these two problems you have understand very well. Now हम लोग कुछ points पढ़ेंगे subsets के regarding. Okay, सबसे पहले okay, now some of the points regarding subset. First point, empty set, empty, empty set is a subset of every set. empty जो सेट है, void सेट, null सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है. दूसरा पॉइंट, एवरी सेट, ये वाला हमने ऑलरेडी कर लिया. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ओके, हर सेट खुद के ही सबसेट होते हैं. ओके, तीसरा पॉइंट which is important, if A is a subset of B, if A is a subset of B and also B is a subset of A, A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, then A is equal to B. Okay, then A is equal to B. ये तभी हो सकते हो क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A का सारे एलिमेंट B में है. ओके, A का सारे एलिमेंट B में है और इसका मतलब B का सारे एलिमेंट A में है, तो दोनों को एक साथ करेंगे तो A इक्वल टू B ही मिलेगा. ओके, yes, I hope it's done. Now 4 point already done कि number of total subset is equal to 2 to the power cardinality of any set, and fifth point is number of total proper subsets is equal to 2 to the power cardinality minus 1.
ये वन कौन है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, सो वो जो सेम सेट खुद का सबसेट होता है, वही वाला जो कंडीशन, वही वाला जो सबसेट है, उसको अगर माइनस करेंगे तो बाकी सारे जो सेट्स फॉर्म होगा वो सारे प्रॉपर सबसेट होगा, इंक्लूडिंग 5. 5 also is counted here. Okay, yeah, this is done. Let me check recording is on or not. एक और चीज उतना इम्पोर्टेंट खास नहीं है पर याद रखना जरूरी है, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट्स के केस में हमेशा या तो बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, और इस साइड में सेट होगा, राइट? इस साइड में एलिमेंट्स होगा, बीच में बिलोंग्स टू होगा या नॉट बिलोंग्स टू होगा, और इस साइड में सेट होगा। बट इस साइड में अगर सबसेट है, सबसेट्स और एनी सेट, तो इधर भी या सबसेट होगा या तो नॉट सबसेट होगा। ओके, इधर भी सेट होगा। ओके, इसको वैसे नहीं लिखना है कि सबसेट बिलोंग्स टू दिस सेट, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ओके, सबसेट डजंट बिलोंग्स टू, सबसेट आई मीन किसी भी सेट का सबसेट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट बिलोंग्स टू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इन द सेम वे एलिमेंट्स जो है वो, जैसे 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट है, ऐसे नहीं लिख सकते। 1 इधर तो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू ये, और 1 belongs to me, ऐसा हो सकता है। ओके, add these two things, just keep in mind. Now we will consider, we will work upon power set of a set. It's quite interesting topic. Okay, we'll start the power set of a set. Power set किसको बोलते हैं? all the possible all the possible outcomes, all the possible combinations, collection of all the subsets of a set, right? Like total number of subset कितना है? 2 to the power cardinality of a set. So total number of subset जो है 2 to the power n, ये सारे 2 to the power n सबसेट को अगर हम एक सेट के अंदर, एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट के तौर पे यूज करके एक सेट बनाए, देन उसको हम पावर सेट बोलते हैं। ओके, क्या? सो पावर सेट power set. Okay, definition first. Collection of all the possible, डबल एस है क्या? all the possible subsets of a set is called of a set. So power set क्या है? Collection of all the possible subsets of a set. तो इसमें एलिमेंट कितना होगा? So एलिमेंट्स कितना होगा? So total एलिमेंट्स कितना होगा? 2 to the power n of a, जिस जितना उसका कार्डिनलिटी है। सो 2 to the power n of a, इतना सेट, इतना सबसेट को अगर हम एक ब्रैकेट के अंदर, एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल दें रोस्टर फॉर्म में, और हर एक सबसेट को अगर हम एक एक एलिमेंट्स के तौर पे यूज करें, देन जो सेट बनेगा उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर सेट ए है उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है। ओके, कितना एलिमेंट है टोटल सेट ए में? टोटल
सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट है, 1 2 3। नाउ हमें पावर सेट फॉर्म करना है। तो पावर सेट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले इसका सबसेट्स हमें पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 होगा, राइट? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और वो सबसेट क्या है? सबसे पहले तो 5 आएगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 1 2 2 3 3 1, देन 1 2 3। टोटल इतना सबसेट्स है, वो 5 1 2 3 ऐसे करके कहते हैं। टोटल 8 सबसेट्स है। पावर सेट ऑफ ए किसको बोलेंगे? इसी को एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल दें एंड हर एक एलिमेंट, हर एक सबसेट को एक एक एलिमेंट के तौर पे हम लोग यूज करें, देन इट विल फॉर्म एज पावर सेट। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स है। So this is the power set of A, where A is 1 2 3. Now question number 8. If A is equal to 1, then find power set of A, and also find P of 5 and P of 5. Okay, you have to do it by your own. It's a homework for you. I'm just giving you a hint. Okay, so solution. ये सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट्स है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे कितना होगा? 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। और वो दो सबसेट क्या होगा? एक तो 5 है, दूसरा एक खुद है, राइट? इन दोनों को अगर हम सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल दें तो वो पावर सेट ऑफ है। अब क्या बोला? तो मैं इसका भी पावर सेट निकालना है, पावर सेट ऑफ है, राइट? तो ये इसको हम एलिमेंट मान लेते अल्फा, इसको बीटा मान लेते हैं। सो सबसे पहला तो एक 5, एक और सेट। इस केस में भी तो 5 जो है ये, इसको अगर हम अभी सेट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, कभी कभी बंद कर देते हैं। ओके, सो कौन है? ओके, नाउ पावर सेट ऑफ ए। नाउ दिस पावर सेट ऑफ ए को हमें एक सेट की तरह कंसिडर करना है जिसमें एलिमेंट दो है, एक अल्फा एक बीटा, जहाँ पे अल्फा जो है वो 5 सेट है, बीटा जो है वो 1। ओके, या सो सबसे पहले 5 एक सेट होगा, सॉरी 5 एक सबसेट होगा। क्या होगा? 5 एक सबसेट होगा। अब इसका कितना? 2 to the power 2 is equal to 4। इसका सबसेट कितना होगा इस सेट का? 2 to the power 2 is equal to 4 सबसेट होगा टोटल। वो 4 सबसेट क्या है? एक है 5, दूसरा अल्फा, तीसरा बीटा, चौथा अल्फा कॉमा बीटा। इन चारों को हम सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। सो व्हाट यू विल गेट नाउ, ये तो जैसा वैसे रहने दो। अल्फा मतलब क्या लिखा है हमने? अल्फा मतलब 5 है ना, उसको वैसे डाल दो। देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बट हाँ वैसे ही है। ओके, बीटा के जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। नाउ अल्फा के जगह में क्या था? 5 था, सो 5 लिख दो। बीटा के जगह पे 1 था। ओके, so this is the power set of A where A is singleton 1. Okay,
It's a singleton. It's a singleton. Okay. Now, in the case of second one, power set of phi. Phi का क्या मतलब है? So, सबसे पहले तो phi is equal to like this, right? Now, you have to find power set of phi. So, P of phi निकालना है, राइट? इसका कार्डिनलिटी क्या है? 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका क्या होगा? एक ही होगा। और वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? फाइव ही होगा। फाइव ही खुद का सबसेट होता है, एक ही एलिमेंट है, सॉरी एक ही एलिमेंट नहीं, एक ही सबसेट है, वो है फाइव। तो टोटल पी ऑफ फाइव में कितने एलिमेंट होगा? एक ही एलिमेंट होगा, और वो कितना होगा? फाइव होगा, राइट? अब मैं कर ही देता हूं पूरा। नाउ पी ऑफ फाइव, पावर सेट ऑफ फाइव इसमें, ओके ओके, सेकंड ब्रैकेट के अंदर होगा, ओके। नाउ इसको अगर हम लोग अल्फा मान लेते हैं, सो इन दिस केस इट विल बी, सॉरी, इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं, इसमें कन्वर्ट होगा, राइट? यस, एंड हियर एलिमेंट इज वन एलिमेंट हियर, so 2 to the power 1 is equal to 2. Okay, so total number of subsets for this case और सेट ऑफ फाइव, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? 2 होगा। और वो 2 कौन कौन है? एक होगा अल्फा और एक होगा फाइव इटसेल्फ। ओके, एक अल्फा होगा, एक फाइव इटसेल्फ होगा। सो नाउ पहला जो है वो फाइव होगा सेकंड ब्रैकेट के अंदर, दूसरा क्या होगा? अल्फा होगा। अब अल्फा के जगह पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, अल्फा के जगह पे हम लोग वो जिसको अल्फा क्या लिखे, फाइव सेट को ही अल्फा लिखे ना, तो उसको पुट कर देते सिंपली। ओके, सो दिस इज द पावर सेट ऑफ फाइव। आई होप अप टू दिस इज क्लियर। आई होप पावर सेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ किसी भी सेट में कितना भी एलिमेंट्स दिया रहे, जैसे अगर मान लो किसी सेट में एक से एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट है, ओके, जिसमें 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड। अब आपको बोला गया फाइंड द पावर सेट ऑफ दैट सेट। सो फर्स्ट केस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल मिलेगा? 3 एलिमेंट्स है, इट मींस इट विल प्रोवाइड 2 to the power 3, दैट मींस 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, सो पावर सेट में फर्स्ट पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट होगा? 8, राइट? नाउ अगर बोला गया कि फाइंड पावर सेट ऑफ ए, इट मींस पी स्क्वायर, दैट इज 2p ऐड हुआ, तो फिर कितना एलिमेंट्स होगा? अब 8 2 to the power cardinality of power set of A, that means 2 to the power 8, right? 2 to the power 8 is equal to 256. So second case में power set of A will contain the total number of elements will be 256. Third case में P of A will be 2 to the power 256. In the same way, just exponentially ये बढ़ेगा। Okay, I hope you will find whatever case will come in front of you, you will just need to cope up this. I hope up to this is done. Now we will start Venn diagram, I guess, sorry, universal set. Venn diagram पढ़ने से पहले थोड़ा universal set का concept होना जरूरी है। That's all. Let's start. But after a little. Okay, now we are about to start universal set and then Venn diagram, then operations on sets. Okay, so first one is universal set.
यूनिवर्सल सेट, इसमें वो सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो हमारे डिस्कशन में आएगा। ओके, सारे एलिमेंट्स जितना तुम सोच सकते हो तुम्हारा उस दो सेट्स, और अगर मल्टीपल सेट दिया है उसमें जितने भी ऑपरेशंस करके जो जो भी मिलने वाला है वो सारे सेट को कंबाइन करके उससे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ के जो सेट बनेगा, फॉर्म होगा, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? तो फिर a set consisting all the possible elements, all the possible elements which occur in our discussion. Okay, for example मान लो, for example और एक चीज ये है कि ये हमेशा गिवन होगा, गिवन ऑलवेज, ऑलवेज क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट जो है वो दिया रहेगा। एक सेट मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B एक और सेट है -5 6 7, ओके, ये सेट है, and then universal set will be, and it's given that universal set is equal to -10 -9 -8 dot 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 0 1 2 dot 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 10। तो यूनिवर्सल सेट में उन सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, मतलब एक लार्ज सेट है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। ओके, लाइक इस यूनिवर्स के अंदर सारे चीज समाया हुआ है। ओके, सो दिस इज, नाउ हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि ये सारी चीज आपका ऑलरेडी हो चुका है तो यू कैन जस्ट स्किप, यू जस्ट complete the questions which are being come here, okay, which are being taught here, only the questions you should do, skip the theory portion, okay। Venn diagram actually है क्या? This is nothing but geometrical way, geometrical way of representing सेट्स, सेट्स को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है वेन डायग्राम, ओके। या आई होप यही पे यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग रेक्टेंगल के थ्रू, एक लार्ज रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करेंगे, एंड एनी अदर सेट, सेट्स को हम लोग एक क्लोज्ड लूप ऐसे करके डिनोट करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इन द अबव केस, एग्जाम्पल के तौर पे अबव में वो जो सेट, उसको अगर हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट करें then what we will find, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप आपको ड्रॉ करना है, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। तो इन दिस केस यूनिवर्सल सेट इज, मान लो ये सी है, नहीं, यूनिवर्सल सेट है सी, ओके।
denoted by U. Okay, universal set is denoted by U. So in this case ये यूनिवर्सल सेट है और U है. ओके, सो ये है U, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आने चाहिए. नाउ क्लोज लूप के थ्रू हम लोग सेट्स को डिफाइन करेंगे ऐसे करके, एक सेट, दूसरा ये सेट. ओके, ये हमें इंटरसेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है ना सेट के बीच में दो कॉमन एलिमेंट आए, तो कॉमन एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करने का. कॉमन एलिमेंट, सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे. ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है? एक भी नहीं है, राइट? एक दो कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं, 3 4. ओके, तो 3 और 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट है. सो कॉमन एलिमेंट 3 एंड 4 ऐसे करके डाल देंगे. अगर 5 होता तो भी उसके अंदर डाल देते. ओके, नाउ पहला केस, सेट ए के अंदर बाकी एलिमेंट कितना है? 1 एंड 2, 1 2. और सेट बी के अंदर बाकी एलिमेंट कितना है? -5 6 7. सो टोटल सेट ए में कितना, सो टोटल सेट बी में कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है. और वो क्या क्या है? वो इस क्लोज्ड सर्कल के अंदर है. 3 4 -5 6 7, राइट? टोटल सेट ए क्या है? ये पूरा सर्कल के अंदर जितना है. टोटल सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है. और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन इन यूनिवर्सल सेट, दैट शुड बी प्लेस्ड outside this circular shape. Okay, outside this closed shape within universal rectangular shape, universal set. Okay, बाकी कितना है? -10 -9 ऐसे करके होगा. -9 -8 -7 हो सकता है, -6 -5, जितने भी बाकी सारे चीज हैं. एक दो तो ऑलरेडी हैं, 1 2 तो ऑलरेडी हैं, 3 4 भी हैं, 5 6 7 7 है ऑलरेडी, 8 9, बाकी 10 तक है. ओके, और ये जो -5 -4 -3 -2 -1, तो यूनिवर्सल सेट ये है. इसके अंदर ए सेट ये है, बी सेट ये है. इफ वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत समझ में आया, यही है रिप्रेजेंटेशन, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. नाउ हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे अब, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स. सेट्स के ऊपर ऑपरेशन. इसमें हम लोग टोटल 5 ऑपरेशन पढ़ेंगे. यूनियन, इंटरसेक्शन, टोटल 5 ऑपरेशन पढ़ेंगे. यूनियन, इंटरसेक्शन एंड देन डिफरेंस, symmetric difference, and then complement. Okay, so operations on set. Operations on set. Okay, operations on set. सबसे पहले यूनियन पढ़ेंगे. यूनियन इस साइड में, एंड इंटरसेक्शन. यूनियन एंड इंटरसेक्शन दो को एक साथ पढ़ेंगे. ओके, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. यूनियन मतलब कंबाइंड एलिमेंट्स, कंबाइंड, और यू कैन से टोटल combined elements of sets. यूनियन मतलब कंबाइंड एलिमेंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक सेट ये है, लाइक ये एक सेट है जो दिया हुआ है 1 2 3 4 3 5 9 10. ओके, एक सेट ए है जो दिया हुआ है ये. बी एक और सेट है जो 5
10 to 15 17 ये दिया हुआ है. Now you have to find union. Combined elements of both A and B will be called as total elements of A and B will come under union. Okay, union मतलब अगर बोला है कि find the union of A and B, एक इसका एक सिंबल होता है. ओके, इसका एक सिंबल है U, यूनियन का सिंबल सिंपल U, इंटरसेक्शन का जस्ट उल्टा. ओके, union combined elements of sets. Okay, now in this case what will be A union B? combined element, total elements. Okay, but एक चीज आपको याद रखना है, वो यही है कि ये यूनियन B जो है ये खुद भी एक सेट ही है. ओके, ये यूनियन B, like A is a set, B is a set, A union B is also a set. And from the very basic definition of set, what we had learned that a set is having unique elements, right? Repetition is not allowed in roster form. और ये क्या है? ये roster form ही तो है. सेट में हर एक एलिमेंट्स यूनिक होता है. एक से ज्यादा है सेम एलिमेंट्स तो उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, एक ही बार लिखेंगे. ओके, नो मोर देन वन प्रेजेंटेशन. ओके, आई होप इट्स डन. सो जो कॉमन एलिमेंट्स होगा इन दोनों में, लाइक कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? 5 कॉमन है, राइट? 10 कॉमन है, 2 कॉमन है. दिस 3 should be placed in A union B only once, while दोनों में एक एक बार करके हैं तो टोटल कंबाइंड के टाइम पे 2 बार आ सकता था, पर सेट की बेसिक डेफिनेशन के तौर पे हम लोग एक ही बार लिखेंगे कंबाइंड एलिमेंट को. ओके, कॉमन एलिमेंट्स को एक एक बार ही लिखेंगे. सो ये यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? ए में कितना? एक, मतलब टोटल जितने एलिमेंट्स है ए में लिखो 5 9 10, और बी में कितने एलिमेंट्स है? 5 10 2. 5 10 2 जो है वो कॉमन है तो ऑलरेडी 2 5 10 एक बार लिखा हो गया, तो इसका मतलब इन तीनों को और नहीं लिखेंगे. ओके, 10 नाउ 15 17. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हुआ? जो भी है गिन के लिख दो. अब नाउ इंटरसेक्शन के केस में ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, जितने भी आपका सेट्स हैं उन सारे सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उस कॉमन एलिमेंट से जो सेट फॉर्म होगा उसी को हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ दैट 2 सेट्स बोलेंगे, और 3 सेट्स. हियर ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, कॉमन एलिमेंट कितना है? 2 है, 5 है और 10 है, तो कॉमन एलिमेंट्स कितना होगा? 2 5 10. सो ए इंटरसेक्शन बी इज this and A union B is this. Okay, I hope this is clear. यूनियन को और भी बोलते हैं और इंटरसेक्शन को एंड भी बोलते हैं. ओके, लाइक ए और बी और उसमें ए एंड बी ऐसे करके भी बोलते हैं. ये यूनियन बी और ए और बी, और मतलब एडिशन, इंटरसेक्शन में ए एंड बी. ओके, yeah, operations 1 set. Now difference between 2 sets. Okay, I hope up to this is clear.
नाउ डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स क्लियर कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन हमने किया, इसी चीज को अगर हम थोड़ा वेन डायग्राम के फॉर्मेट में देखें तो कैसे देखेंगे? ये पूरा सेट है, ओके। सो ये यूनियन बी, फॉर दिस केस ये यूनियन बी, इंटरसेक्शन में क्या क्या था? कॉमन एलिमेंट्स 2 5 10, 2 5 10 इसको रख दिए ऐसे। अब ए सेक्शन में क्या क्या है एक्स्ट्रा? 3 1 है, 3 है, 9 है, 10 तो हो गया, 1 3 9, राइट। हाँ, और बी पार्ट में ये ए है, ये बी है। बी पार्ट में क्या क्या है एक्स्ट्रा? 15 और 17। सो जो ए यूनियन बी, ये पूरा टोटल, ये टोटल पूरा कंबाइंड ए एंड बी, ओके। ये यूनियन बी जो है वो पूरा क्लोज्ड दो सर्कल है, ए से ए तक पूरा सर्कल, सारे पूरा सर्कल, ओके। और इंटरसेक्शन में क्या है? ये है, ये बी है, ये जो पोर्शन है दिस ओनली इंटरसेक्शन 2 5 एंड 10, ओके। 2 5 एंड 10 दिस इज इंटरसेक्शन बी। बाकी यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, ओके। नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेट्स, ओके, डिफरेंट बिटवीन टू सेट्स। हियर मान लेते हैं कि ए माइनस बी, ए में से बी सेट घटाना है, ओके। ए माइनस बी, टेक्निकल टर्म में ऐसे लिखते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ओके। ए में से वो सारे कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी यू हैव टू माइनस, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ओके। ए में से हिंदी में तो उतना अच्छे से लिखना नहीं आता, हिंदी, ए में से वो सारे कॉमन, वो सारे एलिमेंट्स, ए में से वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, हटा दो, ओके। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी का कॉमन एलिमेंट्स, ओके। ए में से ए एंड बी का कॉमन एलिमेंट्स को हटाना है, बस सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को हटाना है, ओके। और वो ए में से हटाना है, जो पहले रहेगा उसी में से हटाना है, ओके, कॉमन एलिमेंट्स। एंड बी माइनस है, सेम है, बी में से वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है वो हटा देना है। अब बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम ही है, ओके। हाँ, ये यूनियन, एक चीज लिख लो यहीं पे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ओके। ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, ओके। बट यहाँ पे नोट है कि
ए माइनस बी यूजुअली बी माइनस ए के साथ इक्वल नहीं होता है, यूजुअली बी माइनस ए के साथ इक्वल नहीं होता है। तो ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल था उसी चीज को इसमें भी अप्लाई करेंगे। आप देखो व्हाट वाज ए एक्चुअली 1 2 3 5 9 10 राइट, बी वाज 5 10 2 15 17 right. Now a minus b is equal to a minus b क्या है, ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो दोनों में कॉमन है। ए में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 है 2 है 3 है 5 है 9 है 10 है। ए में टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 5 9 10, इतना सारे एलिमेंट्स है। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना है, 5 कॉमन है राइट, 9 कॉमन है, 9 कॉमन नहीं 10 कॉमन है, 10 कॉमन है और उसके बाद 2 कॉमन है। ये 3 एलिमेंट कॉमन है तो वो 3 एलिमेंट को अब आपको हटा देना है। तो 2 हटाया, 5 हटाया, उसके बाद 10 हटाया। सो ए माइनस बी में कितना एलिमेंट बचा है, 1 3 9। ओके, कॉमन एलिमेंट को हटाने के बाद 1 3 9 ये बचा है। ओके, नाउ बी माइनस ए करेंगे तो बी में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5 है 10 है 2 है 15 है और 17 है। बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स है लिख दिए। इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स टोटल कितना है, 3 है, 5 10 एंड 2, इन तीनों को हटा दो तो जो सेट बनेगा वो बी माइनस ए होगा। ओके, सो बी माइनस ए क्या है, 15 और 17। इसी को हम वेन डायग्राम में देखें तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ओके, दिस विल बी U for this case also। इसके अंदर सारे ऑपरेशंस होंगे। ओके, यस, नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस राइट, ये A है, ये B है। इन दिस केस ऑल्सो दिस इज A, दिस इज B, A B A B। ये में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, पहले कॉमन एलिमेंट है तो 2 5 10, 2 5 10। जो शेडेड एरिया होगा उसी को शेडेड एरिया के थ्रू हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस को नोट करेंगे। ओके, नाउ ये में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 3 9 1 3 9 और बी में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 15 17, इसमें 1 3 9 15 17। नाउ ए माइनस बी, ए में से बी का कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है। तो कॉमन एलिमेंट्स वाला पोर्शन कितना है, ये वाला चीज, दिस इज कॉमन एलिमेंट राइट, और टोटल ए कितना है, ये पूरा ए है राइट, ये पूरा जो है ये ए है। इसमें से ये वाला पोर्शन, कॉमन वाला पोर्शन को हमें हटा देना है। तो बचा कितना, इतना बच गया। तो ये जो है सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, ये है जो, सॉरी नॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, ये है डिफरेंस ए माइनस बी। क्लियर है, ये वाले पोर्शन को ए में से हटा देना है। ओके, ये है ए माइनस बी। इन द सेम वे टोटल बी कितना है, टोटल बी है पूरा राइट, ये पूरा राइट क्लोज्ड लूप जो है ये पूरा टोटल बी है। इनमें से
ए एंड बी का जो कॉमन एलिमेंट्स है लाइक 2, 5 एंड 10, ये वाले पोर्शन को अगर हम लोग हटा दें तो बाकी रहेगा कितना है बी के अंदर, ये बाकी चीज, ये चार चीज रहेगा, राइट। तो ये जो शेडेड पोर्शन है बी के अंदर, ये है बी माइनस ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, ओके, यूजुअली सेम नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस और कुछ नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस इसी में कर देता हूं। हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस लाइक ये एक सेट है। इन दिस एग्जाम्पल इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे इसमें भी। और सिमेट्रिक डिफरेंस में या तो वैसे करके लिखते हैं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ये ट्राइंगल बी, ओके। ये दो नोटेशन आपको याद रखनी है। सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसे ए प्लस बी, ये एक्स और गेट का एडिशन का सिंबल भी है, मुझे जहां तक याद है, इज इक्वल टू क्या है, ये जो ए माइनस बी आपने निकाला है, यूनियन बी माइनस, ओके। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, दोनों सेट लाइक एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आई होप क्लियर है, मतलब या थियोरी तो क्लियर हो ही गया होगा। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस में तो फिर कितना एलिमेंट्स होगा, ए माइनस बी में क्या है, ए माइनस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ए माइनस बी में हम लोग किया है ना 1 3 1 3 9, राइट। हाँ, यूनियन दूसरे बी माइनस ए में 15 17, राइट। सो इन दोनों के यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 3 9 15 17। सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एक चीज नोटिस करो, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या नहीं है, वो जो कॉमन एलिमेंट्स था 2 5 10, वो वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी ए का पूरा पोर्शन है, बी का पूरा पोर्शन है। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम में शो करेंगे तो ये जो बीच वाला कॉमन एलिमेंट वाला पोर्शन है उसको हटा देंगे, बाकी पूरा जो रेस्ट ऑफ द ए एंड बी है उसको ऐड करना है, ओके। तो वेन डायग्राम में इसको कैसे देखेंगे, ये है, ये बी है। सो 2 5 10, बाकी रहा 1 3 9 और बी में 15 17। सो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या देखा हमने कि जो बीच में जो कॉमन वाला पोर्शन है उस चीज को हटा दो, उस चीज को हटा दो तो बाकी जो चीज बचा है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। हाँ, शायद ये नहीं दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल बी लिखा हुआ है, ओके। ये ट्रायंगल बी और ये सौर बी, एक्स और बी, ओके। इसको एक्स और गेट का ही एडिशन का ही सिंबल है, ओके। सो ये कौन सा वाला एरिया है, कॉमन वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी जितना रेस्ट ऑफ ये बचा है वो और रेस्ट ऑफ बी बचा है वो। सो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस शेडेड पोर्शन, कॉमन वाला पोर्शन को
हटा दूं। ओके, एंड एक चीज जो आपको याद रखना है इसमें, इसी में नोट करके लिखो। मैं छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि जगह का शॉर्टेज है यहीं पे। वो ये कि a प्लस b एक्स और b इज इक्वल टू b एक्स और a। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। एक और नोट पॉइंट, एक और नोट पॉइंट वो ये है कि a माइनस b एंड b माइनस a, these two are disjoints disjoint sets. Okay, a minus b and b minus a are two disjoint sets. इन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो है जो ए से निकाल दिया। दूसरे में दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो है जो बी में से निकाल फेंका। तो कॉमन एलिमेंट तो कैसे रहेगा? कॉमन एलिमेंट है नहीं, इसीलिए दिस टू आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? इक्वल सेट को वहां पे बोलना चाहिए था, शायद मैं भूल गया कि टू सेट्स having completely different elements, no common elements. okay, no common elements, तो वैसे दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। okay, I hope up to this is clear. Now one is left, that is complement of a set. complement of a set, जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया है, राइट? यूनिवर्सल सेट U, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय U एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर शेप, राइट? उसमें एक क्लोज्ड सर्कल और क्लोज्ड लूप मान लेते हैं, कोई सा भी एक क्लोज्ड लूप है, वो एक सेट है X। तो X का कंप्लीमेंट जो होगा वो क्लोज्ड लूप को छोड़ के बाकी जो पूरा सेट है, पूरा यूनिवर्सल सेट है, वो उसका कंप्लीमेंट कहलाएगा। ओके, सो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओके, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट सबसे पहले डिनोटेड बाय लाइक एक सेट है और यू कैन से X इज अ सेट, X बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, X डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और X C के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यस, सो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय X बार, X डैश और X C, और वो है क्या असल में? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट असल में है क्या? यूनिवर्सल सेट माइनस इज इक्वल टू X C। क्या है? टोटल जो गिवन सेट है यूनिवर्सल सेट U, यूनिवर्सल सेट U इज व्हाट? इट्स गिवन दिस एंड दिस इज अ सेट X। सपोज मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं, ओके, और ये है U, ये है X। ओके, सो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, दिस होल सेट okay, this is XC, complement of a set is this। जो सेट X दिया हुआ है उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना भी बाकी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स को एक साथ कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट बोलते हैं। सो कंप्लीमेंट ऑफ द सेट इज नथिंग बट
यूनिवर्सल सेट माइनस द सेट इटसेल्फ. ओके, फॉर एग्जांपल अगर दिया गया यूनिवर्सल सेट इज 1 2 डॉट 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 15 तक एंड बोला गया एक सेट है y में कितने एलिमेंट है 2 5 10 7 11. ओके, 2 5 10 7 11. सो y डैश में कितने एलिमेंट होगा एंड वो एलिमेंट क्या क्या होगा u माइनस y, राइट. u में से जो y वाला एलिमेंट है उनको हटा दो, सो रेस्ट मिलेगा. तो वो क्या होगा 2 को हटा दो, सो 1 रहेगा. 2 नहीं आ सकता, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं रहेगा, 6 आएगा, 7 नहीं रहेगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा, 8 9 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 भी कॉमन है, 11 भी नहीं आएगा, ये 11 भी कॉमन है, 12 13 14 15 ये है complement of y. Okay, so up to this is completed. I am also exhausted today. Yeah, maybe at night I will start from now onwards, in which we will complete different problems related to Venn diagram, story problems, and other PYQs too. Okay, so yeah, thanks for watching this and thank you very much for having such a patience. And अगर आपको लगता है कि क्लास में कुछ ज़्यादा ही बेसिक्स हो रहा है, you can skip that portion. Okay, I recommend you. You have to save your time. If you have money, if you have anything, but you can't, if you can't buy time for yourself, then it's completely wasted. Okay, if you have wealth but you can't buy money for yourself, then it's wastage. Okay, हाँ, बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं या हम भी देखते हैं थोड़ा बहुत उन सबको, सीखते हैं उन सबके एक्सपीरियंस से. सो दैट्स वाई इसके केस में भी आपको वही करना है. अगर आपको लगता है कि दिस पोर्शन इज ऑलरेडी डन बाय यू, यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल, देन जस्ट स्किप इट. ओनली क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, दैट्स important, because at the end of the question paper in the examination hall, you just need to complete it, the questions. Okay, nothing else. I hope this is yeah, this class is done. Okay, thank you very much for watching and yes, bye, have a good time.